with Bihar, but shifting our focus to another family feud. It's a big political drama that has erupted in the Lalu Prasad Yadav family after the RJD's poll drubbing in the recently concluded elections. And the debacle was followed by indications of a deep divide within the Lalu family, as daughter Rohini has declared that she was disowning the family. In her latest in this explosive family drama, Rohini just posted a deeply emotional message and has touched on family pressures, dignity and the treatment of women within the Lalu households. In her statement, she recalls being abused and told she was dirty for donating a kidney to save her father's life. Remember, it was in 2022 that she donated a kidney to save Lalu Yadav's life. A decision, she says, she made out of love without seeking permission from her husband or her in-laws. She says she is now being accused of taking money, buying tickets and getting her father's transplant done through dirty means. Allegations that she strongly rejects and denies. Her post takes a heartbreaking turn as she also urges daughters across the country not to repeat what she calls her mistake, prioritizing a parent's life over marital expectations. She questions why her daughter's sacrifice is branded wrong, while sons are rarely held to the same standard. The party won only 25 seats. It was a humiliating defeat for the Mahagathbandhan and the first family of Lalu Yadav, because now tensions are rising at home as well. Lalu's younger daughter, Rohini Acharya, has posted a shocking message on social media. She says she is breaking ties with her own family and also quitting politics. Rohini claims that two people that she named for her decision, MP Sanjay Yadav and Ramiz Nehmat Khan. And Ramiz, remember viewers, is the son-in-law of ex-MP Rizwan Zahir, who continues to remain behind bars. And she claims that it is the proximity of Sanjay Yadav and Ramiz to Tejaswi that has forced her to take this decision. And she is now claiming that it was Ramiz who told her to take this step and she is taking the blame. Listen in to Rohini. मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। Meanwhile, the BJP and the JDU have sharply criticized and have taken political pot shots at the RJD, alleging that it is total collapse in the Lalu Parivar. ये जरूर दिख रहा है कि जिन लोगों ने पूरे बिहार को चलाने के सपने देख रहे थे, वो परिवार भी नहीं चला पा रहे। रोहिणी आचार्य ने बहुत सारी बात कल मैं सुन रहा था, बहुत ही आपत्तिजनक। सवाल पूछने पे चप्पल से पिटाई हो सकती है, सवाल पूछने पे आपको घर से बाहर निकाला जा सकता है। ये कहीं न कहीं उस मानसिकता का परिचायक है जिस जंगल राज के लिए पूरा शासन जाना जाता था। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इन लोगों की अंदरूनी समस्याएं ठीक। परिवार का मामला है, परिवार के लोग जवाब देंगे और ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसको देखेगा पूरे मामले को। अभी तो चुनाव परिणाम आए हैं, इसके बाद से स्वाभाविक है, लेकिन इस तरह के परिणाम क्यों आए, क्या कारण रहे, इसकी समीक्षा होगी। किन कारणों से ये हुआ, इसके बाद ही इस पर कोई प्रतिक्रिया होगी। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि जिस तरह से रोहिणी जी ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, हर माँ, पिता, कोई भाई चाहेगा कि रोहिणी जैसी बेटी, रोहिणी जैसी बहन सबको मिले। ये तो किसी भी घर के लिए सौभाग्य की बात है। रोहिणी आचार्य जी लालू यादव जी को, जैसा कि हमने सुना कि उन्होंने अपना किडनी भी
लालू जी के जिंदगी को बचाने के लिए दिया है। जिस तरह से परिवार में लगातार और एक दो व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है। परिवार अगर अपना बेटा बेटी है, कोई भी है, तो निश्चित रूप से परिवार मिलकर रहना चाहिए, बिखरना नहीं चाहिए। देखिए, उनके परिवार का मामला है, छोटी है, मेरे चुनाव में बहुत परिश्रम किया था, हो सकता है किसी प्रकार का निराशा हो, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनता दल और परिवार बिखरता जा रहा है और संकेत अच्छे नहीं। उन्होंने संजय यादव पे आरोप लगाया। मुझे उनके पार्टी और उनके परिवार के बारे में कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन संकट राष्ट्रीय जनता दल पर बड़ा मंडरा रहा है और ये पार्टी पूरी तौर से अब बिखर चुकी है। फैमिली से राज नहीं चलता है, उनके फैमिली का मैटर है, उसका समाधान वो लोग ढूंढें। ये उनका फैमिली मैटर है, उनका इंटरनल मैटर है, इसके ऊपर हम लोग क्या कह सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि पहले से ही महागठबंधन में सब कुछ सही नहीं था और ये गठबंधन में कहीं कोई वैचारिक तालमेल नहीं था, इसलिए इनका चुनाव के पहले ही गठबंधन पहले ही बिखर गया था, परिवार भी बिखर रहा है।